اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ اللہ کا دوست وہی بن جاتا ہے جو رب تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور جب تقوی ان کے دلوں میں آ جاتا ہے تو اللہ ان کو اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لیتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بہت ہی پائے کے تقوی والے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جیسے حضرت غوث اعظم نجیب الطرفین ہیں، ٹھیک اسی طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز بھی نجیب الطرفین ہیں۔ اب نجیب الطرفین کا معنی کیا ہے؟ نجیب الطرفین کا معنی یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے والد کا سلسلہ، یعنی آپ کا سلسلہ والد کی جانب سے حضرت امام حسین تک چلا جاتا ہے، اور ماں کی جانب سے آپ کا سلسلہ حضرت امام حسن تک چلا جاتا ہے۔ تو جس کے سلسلے میں دونوں ذات آ جائیں، یعنی وہ حسینی بھی ہو اور حسنی بھی ہو، اسے نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کے پیر و مرشد ہیں، لیکن خواجہ عثمان ہارونی آپ کو کیسے ملے جو آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز کی جب عمر 15 سال ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا نام ہے غیاث الدین اور آپ کا نام ہے حسن، لقب آپ کا معین الدین۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کے والد ہیں غیاث الدین، ان کا انتقال ہو گیا اور آپ کو وراثت میں ایک باغ ملا، حضرت خواجہ غریب نواز کو وراثت میں باغ ملا اور اس میں ایک پنچکی۔ تو خواجہ غریب نواز 15 سال کی عمر ہی میں خود سے اپنے باغ کی کیا کرتے؟ نگہبانی کرتے، دیکھ بھال کرتے، کاروبار کرنے لگے۔ اسی دوران کہ جب آپ 15 سال کے تھے اور اپنے باغ کی نگرانی کر رہے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ کے باغ میں ایک بزرگ آئے، ابراہیم قندوزی، مجذوب اللہ والے، جنہیں صرف اللہ ہی اللہ جن کے دل میں ہوتا ہے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کل مجذوب کا معنی دوسرا لے لیا ہمارے نوجوانوں نے اور ہماری بھولی بھالی عوام نے، کہ جو گالیاں بکتا ہو روڈ پہ، ننگا گھومتا ہوا نا، وہ مجذوب ہے۔ بہت سے ایسوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کوئی ہمیں ایسا مل جائے جو ننگا ہو بالکل اور گالیاں بکتا ہو، نہ نہایا ہو، ایک سال سے کئی سالوں سے نہ نہایا ہو، جو گندا ہو انتہائی، اسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو، پاگل بھی تو ایسے گھومتے ہیں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ جو ننگے گھوم رہے ہیں اور جو گالیاں بک رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہوں، پاگل بھی تو ہوتے ہیں۔ تو 100 میں سے اکا دکا ایک دو ایسا ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن سبھی کی خدمت لگ جانا، سبھی، اور جتنے یہ سٹے باز ہوتے ہیں شاید نمبر بھی پوچھتے ہیں جا کے ان سے کہ نمبر بتا دیجئے ہمیں، تو یہ عجیب معاملہ ہے۔ حالانکہ جو مجذوب ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے ہیں، ان کے زبان پر اللہ ہی اللہ رہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی جب آئے آپ کے باغ میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ مجذوب ہیں، تو آپ اپنے باغ کا، انگور کا باغ تھا آپ کا، تو ایک گچھا توڑ کر انگور کے اپنے باغ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مجذوب تھے، اللہ والے تھے وہ، اور گدڑی پہنے ہوئے تھے، اور تھیلا، جھولا جسے بولتے ہیں، تھیلا آپ کے کیا کاندھے پہ لٹکا ہوا تھا۔ تو آپ کی بارگاہ میں جب حضرت خواجہ غریب نواز نے انگور کا گچھا پیش کیا تو آپ نے نہیں کھایا، اور آپ نے اپنی اس جھولی میں سے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، سوکھی ہوئی روٹی، اور اس کو اپنے منہ میں لیا اور چبانے کے بعد کہا خواجہ غریب نواز سے کہ آپ اس کو کھا لو۔ تو یہ ہے دیکھو بزرگ کی تاثیر کہ آپ نے اپنے منہ میں چبایا، اور چبانے کے بعد جب حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈالا تو خواجہ غریب نواز کی دنیا بدل گئی۔ پہلے دنیا میں لگے ہوئے تھے، کاروبار کر رہے تھے،
बाग की रखवाली कर रहे थे, लेकिन जब उनके मुंह का टुकड़ा इब्राहिम कंदोजी ने जब चबा कर दिया है और आपने मुंह में डाला है तो आपकी दुनिया बदल गई। और यही तरीका है, आप शायद आपके यहाँ शायद ना होता हो, ये सुन्नत तरीका है। हमारे यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो तहनीक की जाती है। तहनीक का क्या मतलब है कि बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले उसके मुंह में वो चीज जाएगी जो उस इलाके का कोई इमाम है या कोई बुजुर्ग है, तो वो बाकायदा चबाकर खजूर वगैरह दे देता है कि अपने बेटे के मुंह में ये सबसे पहले डालना। ये हुजूर तहनीक फरमाया करते थे। साहब हुजूर का जब जमाना था तो जिसके घर में भी बच्चा पैदा होता वो हुजूर की बारगाह में लेकर आता, तो हुजूर खजूर वगैरह मीठी चीज अपने मुंह में लेते, चबाकर उस बच्चे के मुंह में रख देते, तो कुछ ना कुछ क्या है असर उसके मुंह में चला जाता। होता यह था कि जिसके मुंह का चबाया हुआ होता है उसके औसाफ और उसके अखलाक व अतवार उस बच्चे के अंदर चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हालांकि बड़ा अहम बात है ये बहुत ज्यादा, कि अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो तो तहनीक कराएं। आपके इलाके में जहां भी कोई बुजुर्ग हस्ती है, कोई वली कामिल है, या आपके यहाँ कोई इमाम साहब है तकवे वाले, तो उनके जरिए तहनीक कराएं। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुंह में जब हजरत इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह में चबाकर जब खली का टुकड़ा यानी सूखी रोटी का टुकड़ा जब डाला है तो आपकी दुनिया बदल गई। और वो डालकर टुकड़ा मुंह में चले गए इब्राहिम कंदोजी जो, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का बिल्कुल क्या है दुनिया बदल गई। और फिर उन्होंने क्या है अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, और जो बाग था उसको बेच डाला उसी वक्त, और जितनी रकम आई सारी की सारी रकम आपने क्या है गरीबों पर, फुकरा मसाकीन पर खर्च कर डाली। और फिर आप जो है इल्म हासिल करने के लिए, हालांकि इल्म बातिनी आपके पास था, लेकिन इल्म जाहिरी किताबों का इल्म हासिल करने के लिए आपने बुखारा समरकंद का क्या है सफर शुरू कर दिया। बुखारा समरकंद में आपने क्या है तालीम हासिल की, वहां से आप फिर बगदाद आए। बगदाद आने के बाद में वहां पर आपने शोहरा सुना हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का। सही लफ्ज है हरवनी, लेकिन हारूनी ये मशहूर हो गया है। जब देखा कि इराक के अंदर बहुत बड़े मशहूर अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, तो आप उनकी बारगाह में गए और जाकर अर्ज किया अपने पीर मुर्शिद से, ख्वाजा उस्मान हारूनी से, कि मैं आपसे बैत होना चाहता हूं। तो पीर मुर्शिद ने कहा कि बैत होना चाहते हो तो पहले वजू करके आओ। वजू कराया गया। वजू करने के बाद पीर मुर्शिद ने हुक्म दिया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को कि 2 रकत नमाज पढ़ो। 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर हुक्म दिया कि खाने काबा की जानिब रुख करके सूरह बकरा की तिलावत करो, सूरह फातिहा की तिलावत करो। जब यह भी तिलावत हो गई तो फिर हुक्म दिया 21 बार दुरूद पाक पढ़ो। फिर 21 बार दुरूद पाक पढ़ा ख्वाजा गरीब नवाज ने। फिर 21 बार दुरूद पढ़ने के बाद कहा ख्वाजा उस्मान हारूनी ने 60 बार सुबहान अल्लाह कहो। जब यह भी कर लिया तो फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बाकायदा आपका हाथ पकड़ा ख्वाजा गरीब नवाज का और आसमान की तरफ उठाकर कहा क्या परवरदिगार आलम, मैंने ख्वाजा गरीब नवाज को मोइनुद्दीन को तेरी बारगाह में मकबूल बना दिया है, तू इन्हें कबूल फरमा ले। तो इस तरह से हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जो आपके पीर मुर्शिद हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को अल्लाह की बारगाह का मकबूल बंदा बना दिया। और फिर क्या हुआ कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में आप 1-2 साल नहीं रहे, बाकायदा 20 साल तक हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत करते रहे और मुरीद हुए जाकर। आजकल बहुत से लोग मुरीद भी नहीं हो रहे हैं। अगर पूछा जाए किसके मुरीद हो तो कहते हैं कि अभी तक मुरीद नहीं हुए। मुरीद होना इंतहाई जरूरी है, यानी पीर की तलाश इंतहाई जरूरी है। और इसका फायदा जो है सबसे ज्यादा, यानी पीर की मुरीदी का फायदा दुनिया में तो मिलता ही है। जब इंसान मरता है तो शैतान के वसवसों से, शैतान के हमलों से मौत के वक्त जो बचाता है वो पीर मुर्शिद बचा लेता है। ये बहुत सबसे अहम फायदा है। पीर मुर्शिद की निगाह खास जब इंसान की रूह निकलती है तो उस वक्त भी शैतान के हमलों से जो जात बचाती है वो पीर मुर्शिद की जात है। तो इसलिए पीर से मुरीद होना जरूरी है। कोई ना कोई जिंदगी में पीर होना जरूरी है। ठीक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने भी अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में बाकायदा 20 साल क्या खिदमत की। उनके चप्पल उठाते, उनका बिस्तर उठाते, उनका लोटा उठाते। और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपने साथ जब रखा 20 साल,
तो अपने साथ बाकायदा कई बार हज पर भी लेकर गए। और जब पहली बार लेकर गए हज पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को, तो मीज़ाब रहमत के सामने ख्वाजा गरीब नवाज को खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में मैं लेकर आया हूं अपने इस मुरीद को, मोइनुद्दीन को, और मैं तेरी बारगाह में पेश करता हूं, इसको कबूल फरमा ले। बाकायदा वहां गैब की आवाज आई, गैब से आवाज आई, अल्लाह फरमाता है कि हमने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है। यह ख्वाजा गरीब नवाज की शान। और जब वहां बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल हो गए, तो आपके पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी आपको मदीने मुनव्वरा लेकर आए। और जब मदीने मुनव्वरा लेकर आए, कहा सलाम करें रोजे को। ये पता चला कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद भी मानते थे कि हुजूर जिंदा हैं, तभी तो सलाम करवा रहे हैं। कहा रसूलुल्लाह का रोजा सामने है, सलाम करो। और जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पहली बार हाजिर हुए थे मदीने मुनव्वरा, और हुजूर की औलाद हैं, और जब कहा अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, के सलाम हो आप पर ए अंबिया के सरदार, सलाम हो आप पर ए अंबिया के सरदार। तो उधर से अल्लाह के रसूल ने बाकायदा ये आवाज सुनी, इधर से जब इन्होंने सलाम किया तो हुजूर जवाब देते हैं वालेकुमुस्सलाम या मोइनुद्दीन। और एक रिवायत यह है कि कहा कि वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख, ए मशाइख के कुतुब, तुझ पर भी सलामती नाजिल हो। और फिर क्या हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि ए मोइनुद्दीन, तू मेरे दीन का मददगार है, जा हमने तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता फरमा दी है, जा वहां पर बेदीनी है, जा वहां पर मेरे दीन का काम कर और लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। बाकायदा हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने पहला बारगाह रब्बुल इज्जत में उनको मकबूल बनाया। फिर हुजूर के रोजे पर जाने के बाद हुजूर के रोजे की जालियों के सामने खड़ा करके हुजूर की बारगाह का मकबूल बना दिया। फिर वहां से ऐलान हुआ, अल्लाह के रसूल फरमाते कि मोइनुद्दीन जा, इंडिया चला जा, वहां तुझे क्या दीन की खिदमत करनी है। लेकिन वहां से आते आते हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ आपने और भी दीगर बुजुर्गान दीन की बारगाहों में जाके क्या शर्फ तलम्मुज़ हासिल किया। और खुद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद, उसके बाद एक बुजुर्ग है हजरत सदरुद्दीन मोहम्मद, उनकी बारगाह में लेकर गए। पता चला कि पीर मुर्शिद भी अपने मुरीद को बड़े बड़े वक्त के अब्दाल की बारगाहों में लेकर जा रहा है। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद जब मुझे लेकर गए सदरुद्दीन मोहम्मद की बारगाह में, तो कहते हैं कि मैंने जब उनको देखा कि मैं उनकी बारगाह में 7 दिन तक रहा, और 7 दिन तक वो रोते रहे लगातार कंटिन्यू। और कहते हैं कि ऐसा रोते थे कि उनकी आंखों से आंसू जारी होते और खून भी उनकी आंखों से छलक आता। ज़ारो कतार 7 दिन तक रोते रहे। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मैं मुलाकात के लिए आया अपने पीर मुर्शिद के साथ, लेकिन इनका रोते रोते हाल बुरा हो गया। गुफ्तगू कब ये करेंगे, कब ये क्या अपने फैजान से माला माल करेंगे। मेरे दिल में ये ख्याल चल रहा था कि जब जिस दिन हमारी वापसी का दिन था, तो हजरत सदरुद्दीन मोहम्मद वो कहते हैं कि सुनो गरीब नवाज, ए मोइनुद्दीन, तुम्हारे दिल में जो ये खलजान है कि मैं इतना ज़ारो कतार क्यों रो रहा हूं, तो सुनो, मेरे दिल की कैफियत ये है कि मेरा दिल जो है, मैं कब्र के खौफ से मेरा दिल इतना कांपता है कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, मेरी आंखों से आंसू नहीं थमते हैं। खुद फरमाते हैं कि मैं बसरा के अंदर अपने पीर मुर्शिद के साथ जब एक मुर्दे की तदफीन के लिए गया, वहां पर मैंने अपने पीर मुर्शिद को रोते हुए देखा, तो मैंने भी तमन्ना की कि मेरे पीर मुर्शिद क्यों रो रहे हैं। तो कश्फ से जब उन्होंने देखा कि कब्र के अंदर जो है मुर्दे को अजाब हो रहा है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से वो सदरुद्दीन मोहम्मद बयान करते हैं, मैंने जब मुर्दे को देखा कब्र के अंदर जो सांप बिच्छुओं से घिरा हुआ है, उस दिन से मैंने यह तहैया कर लिया है कि दुनिया कुछ भी नहीं है, इंसान का सामना कब्र से होना है,
कब्र में जाने से पहले इंसान का मुकाबला मलकुल मौत से होना है। वो इंसान जो हमेशा मरने के बाद क़यामत तक जो कब्र में रहेगा, जो काली कोठरी में रहेगा, जहां सांप और बिच्छू उसके बिस्तर पर चारों तरफ से मंडला रहे होंगे, वो इंसान दुनिया में कैसे गाफिल हो सकता है? वो इंसान कि जो दुनिया में एक मुख्तसर जिंदगी गुजारेगा, मरकर कब्र की मिट्टी बन जाएगा, वो इंसान दुनिया में रहकर अपनी कब्र को क्यों भूल जाता है? कब्र के सांप बिच्छुओं को क्यों भूल जाता है? मलकुल मौत से जो सामना होगा, मलकुल मौत से मुकाबला करने की ताकत क्यों नहीं उसके अंदर? कहते हैं वो दिन है, आज का दिन है, मैंने तहैया कर लिया है कि मैं अपनी इस खानकाह से भी बाहर नहीं जाऊंगा। मैं इसलिए डरता हूं, एक दिन तो आएगा कि मलकुल मौत मेरे सामने खड़े होंगे, एक दिन तो आएगा कि इस दुनिया को छोड़कर मुझे भी कब्र में सोना है। बताओ तो सही, वो इंसान दुनिया में कैसे खुश रह सकता है, कैसे हंस सकता है कि जिसे कब्र के अंदर क्या है, सांप बिच्छुओं का सामना करना हो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि वहां से जब मैं फैज़याब होकर आगे आया, फिर कहते हैं मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग है, गजना के गजनबी उनका लक़ब है और उनका नाम है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद फरमाते हैं कि वो इतने पाए के बुजुर्ग थे कि उन्होंने बाकायदा 30 साल तक अपनी खानकाह से बाहर कदम नहीं रखा। और कहते हैं कि जब मैं उनकी बारगाह में गया, मशहूर थे वे, उनका नाम था शेख मोहम्मद अल वाहिद गजनवी। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि जब मैं उनकी बारगाह में गया उनके फैजान से माला माल होने के लिए, तो क्या देखते हैं कि मैं उनकी खानकाह में दाखिल हुआ तो 2 शेर खड़े थे। ख्वाजा गरीब नवाज उनके खानकाह के दरवाजे पर रुक गए और 2 शेर उनकी खिदमत में लगे हुए। कहते हैं वो अंदर से शेख मोहम्मद अल वाहिद गजनवी, पाए के बुजुर्ग, कहते हैं अंदर आ जाओ, शेर से डरने की जरूरत नहीं है कि जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो किसी से नहीं डरता है। और जब आप अंदर गए और शेर बाकायदा साइड हो गए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को भी देख के, शेर भी जानते कौन सी हस्ती आई है। फिर आपने वहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उनसे पूछा कि आपने अपनी खानकाह से बाहर कदम क्यों नहीं रखा? ये गार के अंदर आपने अपनी, पहाड़ों के अंदर आपने अपनी गार बना रखी है, क्यों आप यहां से बाहर क्यों नहीं आते हैं? तो वो कहते हैं मैं इसलिए बाहर नहीं जाता हूं कि मैं जो नमाज पढ़ता हूं पंजगाना, 5 वक्ता की नमाज जो मैं पढ़ता हूं, मुझे नहीं पता ये कबूल होती हैं या नहीं होती हैं। मुझे नहीं पता कि मैं जो शराइत नमाज हैं, नमाज की जितनी भी शर्तें हैं, वो कमा हक़्क़हू मैं अदा करता हूं या नहीं करता हूं। मुझे अंदेशा है कि कल क़यामत के दिन कहीं मेरी नमाजें मेरे मुंह पर न मार दी जाएं, और दुनिया में अगर मैं चला जाऊं, दुनिया में मशगूल हो जाऊं, तो दुनिया मेरे अंदर समा जाएगी। फिर नमाज जब मैं पढ़ूंगा तो वो खुशू खुजू मेरे अंदर नहीं रहेगा। ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, फिर ख्वाजा गरीब नवाज खुद फरमाते हैं कि उनकी गुफ्तगू का माहसल ये था कि इंसान के लिए जिंदगी के अंदर सबसे अहम जो चीज है वो नमाज है। और ख्वाजा गरीब नवाज खुद फरमाते हैं कि उन्होंने बाकायदा मुझे वसीयत की इस बात की कि मोइनुद्दीन चिश्ती सुन लो खूब अच्छी तरह से, ये नमाज एक ऐसी नमाज है कि सबसे पहले ईमान के बारे में इंसान से सवाल होगा और दूसरे दर्जे पर जो सवाल होगा इंसान से नमाज के बारे में। खुद कहते हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, मैंने सुना वो कह रहे थे कि इंसान को हश्र के मैदान में 50 मकामात पर रोका जाएगा, 50 मकामात पर हर इंसान को रोका जाएगा, जहां 50 मकामात पर रोकने के बाद अल्लाह हर एक बंदे से सवाल करेगा मुख्तलिफ। खुद कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, सबसे पहला जो मकाम आएगा वहां बंदे को रोक दिया जाएगा और उससे ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा। ईमान के बारे में अगर जवाब ना दे सका, ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते वहीं से उसको जहन्नम भेज दिया जाएगा। अगर ईमान के बारे में वो जवाब दे पाया तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते दूसरा मकाम आएगा बंदे का, वो जहां उसको रोक दिया जाएगा, पूछा जाएगा नमाजों का हिसाब किताब दे, और जब नमाजों का हिसाब किताब भी अगर ना दे पाएगा जहन्नम भेज दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो अगला तीसरा मकाम है इंसान का, वो है फराइज व वाजिबात, दीगर फराइज व वाजिबात, ज़कात वगैरह, रोजे वगैरह, उनके बारे में सवाल होगा। चौथा मकाम ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि जहां पर बंदे को रोका जाएगा वहां रोक कर उससे पूछा जाएगा कि सुन्नतों को कितना अदा करके आया, दाढ़ी पर कितनी सुन्नत तूने अदा की है अपने। वहां पूछा जाएगा, अगर सुन्नत अदा ना कर पाया वो, तो खुद ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको पकड़कर बाकायदा बारगाह मुस्तफ़ा में लेकर जाया जाए।
क्यों इसने आपकी सुन्नत को अदा नहीं किया, क्यों ये आपकी सुन्नतों को छोड़ कर आया। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं इंसान के लिए सबसे बड़ी रुसवाई ये है कि वो मुस्तफ़ा के सामने खड़े होकर रुसवा हो जाए। और फिर ये 4 मकामात गिनाने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं अभी तो बाकायदा 46 मकामात और हैं। इंसान आसान समझ लेता जन्नत में चले जाना, हालांकि 50 मकाम पर अल्लाह हर बंदे को पूछेगा, मुख्तलिफ सवाल करेगा उसकी जिंदगी के बारे में, बता कैसे गुजार कर आया। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद फरमाते हैं कि अगर कोई एक वक्त की नमाज अगर भूले तो छोड़ दे, जानबूझ के नहीं, भूल से अगर उससे नमाज छूट जाए एक वक्त की भी, तो कहते मैं उस पर 20,000 मरतबा अफसोस करूंगा। ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात है, भूले से अगर कोई नमाज छोड़ दे तो मुझे उस पर 20,000 मरतबा अफसोस है कि उसने नमाज को छोड़ क्यों दिया, इतना हल्का क्यों जाना उसने नमाज को कि नमाज को छोड़ बैठा। लेकिन आज बताएं जितने भी ख्वाजा गरीब नवाज का नारा लगाने वाले हैं, जितने भी ट्रेनों से सफर करके जाते हैं, कितने नमाज पढ़ के जाते हैं, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। बल्कि आज तो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर खुराफात कर रहे हैं लोग, डीजे बजाए जा रहे हैं, कव्वालियां बजाई जा रही हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर जितनी भी जगह कल मैं गया, जहां से भी मैं गुजरा, शायद कुरला में ये सबसे ज्यादा खुराफात हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम पर कव्वाली हैं जिनका सुनना हराम है। कव्वाली वही जायज है जो मजामीर से खाली हो, ढोल ताशे म्यूजिक जिसके अंदर ना हो, वो कव्वाली जायज है सिलसिले चिश्तिया के अंदर। लेकिन ये जो गानों की तरफ में कव्वालियां बजाई जाती हैं, नियाज का एहतमाम किया गया लेकिन कव्वालियां ऐसी बज रही हैं कि गाने भी फेल उनके सामने, इस कदर उनके अंदर म्यूजिक है और नौजवान उसमें नाच भी रहे हैं, उछल भी रहे हैं। ये सारी रिपोर्टें हैं। तो खुदारा ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात नहीं है कि तुम इनके नाम पर खुराफात करो। हमारा मसला क्या हो गया आज की डेट में कि हमारा कोई भी अमल जो है खुराफात से खाली नहीं है। ये नहीं हमारे नौजवानों को समझ आ जाए कि चलो हाँ ये रूहानी काम है, इसमें ढोल ताशे का क्या काम, डीजे बाजे का इसमें क्या काम है, कम से कम इसे तो पाक रहने दे। शादियों में तो जो धम मचता ही है, लेकिन जो रूहानी महफिलें हैं उनको भी गुनाह का क्या जरिया बना दिया है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत व रिदवान फरमाते हैं जो एक वक्त की नमाज अगर छोड़ दे तो मैं 20,000 मरतबा उस पर अफसोस करूंगा। और खुद कहते हैं मैंने अपने कानों से बगदाद के अंदर जामा मस्जिद के वहां के जो जाकिर थे उनकी जबान से ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मैंने खुद सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा के बारे में हजरत मूसा से फरमाया, ऐ मूसा तुम जानते हो हमारी जहन्नमों के बारे में। या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना है बगदाद की जामा मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग को फरमाते हुए कि अल्लाह ने बाकायदा हजरत मूसा से पूछा कि तुम जानते हो मेरी जहन्नमों के बारे में, और जो मेरी 7वीं जहन्नम है हाविया, कुरान में भी उसका जिक्र आया, हाविया 7वीं दोज़ख है वो। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया परवरदिगार आलम तू ही बता ये तेरी जो 7वीं दोज़ख है, जहन्नम है हाविया, इसको तूने किसके लिए पैदा किया। तो अल्लाह फरमाता कि ये हाविया ऐसी हमने दोज़ख तैयार की है कि ये गंधक के पहाड़ों के जरिए तो सुलगाई जाती है, यानी इसमें आग जो तपाई जाती है, गंधक के पहाड़ हैं गंधक के, उनको तपाकर इसकी आग क्या है भड़काई जाती है। अगर एक सुई के नाके के बराबर अगर हम दुनिया में इस हाविया जो जहन्नम है इसकी आग को दुनिया में डाल दे तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। और कहते हैं हजरत मूसा क्या परवरदिगार आलम अब ये तो बता दे इतनी खौफनाक जहन्नम तूने बनाई है किसके लिए बनाई है। तो रब फरमाता है कि इस जहन्नम के अंदर जो 7वीं दोज़ख है इसमें सिर्फ 2 किस्म के लोग जाएंगे। पहला वो जाएगा जो नमाज नहीं पढ़ता है, और दूसरा वो जाएगा जो अल्लाह की झूठी कसम खा लेता, अल्लाह की कसम मैंने ऐसा नहीं किया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बाकायदा उस वक्त यह अहद कर लिया कि अपनी उम्मत को क्या है नमाज की तलकीन करते और नमाज के बारे में हुक्म देते। यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात है कि आपने नमाजों को पढ़ा है, नमाजों के बारे में आपका फरमान मौजूद है कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज इंसान के लिए नमाज है, कि जब वो नमाज पढ़ेगा सारी बुराइयों से दूर हो जाएगा। तो लिहाजा ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर खुराफात नहीं करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले साल में जब भी छठी शरीफ आप मनाएंगे डीजे बाजे के साथ नहीं मनाएंगे। अमल किया करें। सुनने का मतलब यह है कि इंसान अमल करे। हर साल मैं संदल को भी कहता हूं, डीजे को बाजे को कितनी मैं तकरीर करता हूं शादी ब्याह में, छोड़ दो इन चीजों को, लेकिन कोई नहीं छोड़ने तैयार। बस
क्या है, शैतान की मानेंगे, इमाम की नहीं मानेंगे। इमाम हर जुमे में कहता है कि शादियों को पाक कर लो खुराफात से, और अपनी जो नूरानी ये महफिलें हैं रूहानी, इनको पाक कर लो खुराफात से, नहीं मानते हैं। क्योंकि शैतान कहता है नहीं, छोड़ो, करना है ये, डीजे बाजे बजाओ। कितने तो ऐसे हैं कि यार दोस्तों के कहने पर बजाने लग जाते हैं। तो खुदा का खौफ अपने दिल में रखो, मरकर जाओगे कब्र में सोओगे। हाँ, हमेशा यहाँ डीजे बाजे नहीं बजाओगे, वरना कब्र के अंदर फरिश्ते बहुत अच्छे से बजाना जानते हैं, जो उनका गुर्ज है। खुदा का खौफ करो, जितना यहाँ बजाओगे फरिश्ते इतना ही कब्र के अंदर बजाएंगे। और यहाँ तो माँ बाप बचा लेंगे, वहाँ कोई नहीं बचाने वाला है। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात ये नहीं है कि आप ढोल ताशे बजाएं कव्वालियों में, ऐसे तुम अपने डीजों पर कव्वालियां बजाओ के गाने उनके सामने फेल हैं, इस तरह से। और आखिरी बात, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने मुरीद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को एक टोपी अता फरमाई। उसका नाम है चार तरकी, तुर्की लोग पढ़ते हैं, असल नाम है उसका चार तरकी, 4 कोने वाली टोपी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को आपके पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अता फरमाई थी, अपनी तरफ से तोहफा दिया। और कहा, इसके बारे में आया कि ये 4 तरकी जो टोपी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मिली है, इसका मतलब क्या, मकसद क्या है कि जिस टोपी के 4 कोने हैं, तो इसके बारे में सूफिया ने बात लिखी है कि इस 4 तरकी टोपी का मतलब यह है कि आपको 4 चीजें छोड़नी है। तरकी बना है तर्क से, तर्क का माना आता है छोड़ना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को आपके पीर मुर्शिद ये वसीयत कर रहे हैं 4 तरकी टोपी देकर कि आपको 4 चीजें छोड़नी है। पहली चीज क्या चीज छोड़नी है आपको, तो खुद फरमाते हैं कि आपको तर्क दुनिया, दुनिया को छोड़ देना है। दूसरा क्या है कि आपको तर्क आखिरत, आखिरत को भी छोड़ देना है। ये बहुत बड़ा मकाम है कि इंसान जन्नत का तलबगार ना हो, बस अल्लाह की रजा मतलूब हो। आखिरत को छोड़ देने का मतलब कि दुनिया के अंदर तुम्हें इबादत है सिर्फ जन्नत के लिए नहीं करनी है। तीसरी चीज क्या है जो आपको दुनिया के अंदर छोड़नी है, तर्क ख्वाब और खुराक, ज्यादा सोना भी नहीं है, ज्यादा खाना भी नहीं है। और चौथी चीज इसका मतलब यह था कि तर्क ख्वाहिशात नफ्स, नफ्स की जो ख्वाहिश है उसको छोड़ देना। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात